Engineering drawing objective questions of the plane scale, diagonal scale, RF, types of pencils, curves, etc. The preferred size for the drawing sheet is recommended by option BIS, ASME, ASTM, NIST. So option number A is correct. BIS, Bureau of Indian Standard, ASME, American Society of Mechanical Engineer, ASTM, American Society of Testing and Material, NIST, National Institute of Standard and Technology. आपको सबके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है. नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The untrimmed size for the sheet is 240 mm into 330 mm. The option is A1, A3, A4 and A5. So the correct answer is option number C, A4. A4 ड्राइंग शीट का जो साइज होता है वो होता है 240 mm into 330 mm. Okay, then move to next question. SP 46 2003 recommend the border of dash mm width for the sheet size A0 and A1 and dash mm for the size of A2, A3, A4 and A5 sheet. The option is 1020, 1520, 2010 and 1510. So correct answer is 2010. Okay, तो क्या होगा इसका? SP 46 recommend the border of 20 mm width for the sheet size A0, A1 and 10 mm width size for A2, A3, A4 and A5 sheet. Move to next question. The false statement regarding the orientation mark. The option is the orientation mark coincide with one of the centering mark. Option B represent the direction to which the sheet is placed. Option 3, orientation mark can be used for the orientation of the drawing sheet on the drawing board. Option number D is facilitate position of the drawing for the reproduction purpose. The correct answer is option number B, represent the direction to which the sheet is placed. Okay, then move to next question. The size of the title box dash mm into dash mm. Title box का size क्या होता है? 25 into 10, 100 into 25, 65 into 185. ये ऑप्शन नंबर डी 185 into 65. तो टाइटल बॉक्स जो हम ड्राइंग शीट के कॉर्नर बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज होता है ऑप्शन नंबर डी 185 into 65 mm का. ड्राइंग शीट के कॉर्नर में जो हम बनाते हैं हर शीट में उसका याद रखिएगा स्टैंडर्ड साइज कितना होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर फोल्डिंग ऑफ वेरियस साइज ऑफ द ड्राइंग शीट इज ऑप्शन 1, 2, 3, 4. कितना होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, 2. कितनी नंबर ऑफ फोल्डिंग मेथड कितनी होती हैं? 2 होती हैं. देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग स्केल कौन सा है? 10:1 जिसका आरएफ होगा, या 10:2, या 0.5:1, या 2:1. तो आप याद रखिएगा रिड्यूसिंग स्केल मतलब जिसका आरएफ क्या होगा? 1 से कम होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्योंकि इसका जो वैल्यू है 0.5:1 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज नॉट एन एसेंशियल थिंग फॉर फ्री हैंड स्केचिंग. Option, a soft grade pencil, French curve, a soft rubber eraser. Option D, a paper in the form of sketchbook or a pad. Dash is not essential thing. Option number B, French curve is not an essential thing for freehand sketching. जब freehand sketching कर रहे हैं तो French curve is used काहे के लिए होता है? Draw the curve. Okay, next question. Medium thickness line group of 2 mm are not used for. Medium thickness line group for 2 mm are not used for outline, dotted line, cutting plane line, dimension line. क्या होगा इसका ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. डायमेंशन लाइन के लिए यूज होता है. तो याद रखिएगा मीडियम थिकनेस ऑफ द लाइन ग्रुप 2 mm आर नॉट यूज फॉर द डायमेंशन लाइन. देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Initial work and construction lines are drawn using dash pencil. Initial work and construction lines are drawn using 3H, 4H, H या 2H. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका? इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन के लिए तो ऑप्शन नंबर सी H पेंसिल. तो याद रखिएगा H पेंसिल आर यूज फॉर द इनिशियल वर्क एंड द कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए. ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Center line, section line are draw using dash pencil. H, 2H, 3H और 4H या HP. सेंटर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं या सेक्शन लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो कौन सी पेंसिल यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 3H या 4H. थोड़ा सा लाइट वर्क होना चाहिए. और सेक्शनिंग एंगल कितने का होता है बेटा? 45 डिग्री. हैशिंग जो करते हैं हम सेक्शन प्लेन में वो 45 डिग्री पे होता है बेटा. दिस इज द इमेज. इस शीट में बेटा आपको मिलेंगी लाइंस. नंबर ऑफ लाइंस, कितने टाइप की लाइंस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं. ओके, दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल जो टाइप ए लिखा है, एक लाइन डार्क लाइन दिख रही है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन. एप्लीकेशन है वेरिएबल आउटलाइन एंड विजिबल एजेस के लिए.
representative fraction is the dash. First, or ratio of the length in drawing to the actual length, ratio of actual length to the length of the drawing, reciprocal of actual length, square of the length of the drawing. तो क्या होता है बेटा? It is a ratio of drawing length to the actual length. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, द रेशियो ऑफ लेंथ इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ इज द आंसर. याद रखिएगा बेटा, आरएफ का फुल फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइंग लेंथ, रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ. देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन 1:20. व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? बताइए क्या होगा बेटा? द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन, जो ड्राइंग है उसका स्केल है 1:20, तो उसका आरएफ क्या होगा? आरएफ क्या होगा बेटा? ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ होता है फॉर्मूला. अभी लास्ट क्वेश्चन ने बताया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. तो हमें ऑलरेडी आरएफ ही गिवन है और पूछा है आरएफ, तो वैल्यू इज 1/20 ऑल्सो. ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज गिवन 15:1. व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन था बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 15. क्योंकि आरएफ का फॉर्मूला ही होता है बेटा, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और हमें दिया हुआ है The length of the drawing is 50 mm. The scale is given as a 1:5. Find the actual length. बेटा क्या हो जाएगा इसका? तो आर एफ इज इक्वल टू ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 250 mm मीन्स 250 mm मीन्स 25 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 25 सेंटीमीटर. नीचे आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो यू कैन रीड ऑल्सो. ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The actual length is 1 meter. The length of drawings is 5 centimeter. Find the representative factor. Means RF को find out करना. RF का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ मीन्स 5 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर. इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों यूनिट को सेम करेंगे, तो आंसर इज 1/20. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1/20. याद रखिएगा फॉर्मूला. ओके, चलिए, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The representative factor is 4. The actual length is 20 mm. Find the length of the drawing. तो length of the drawing कितना होता है? RF into actual length. ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर? That is 8 centimeter. Okay, the option number D is correct, 8 centimeter. बस फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा. Next question. A machine part is drawn 2 times with different scale. The ratio of first drawing RF to second drawing RF with respect to the actual object is found to be 2. The length of the second drawing is 10 centimeter. Find the फर्स्ट ड्राइंग लेंथ कितनी होगी बेटा? तो आर एफ मतलब ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ. आप इनके रेशियोज को रख के पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2 सेंटीमीटर. नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज 20 सेंटीमीटर. द स्केल इज गिवन इज 2:1. फाइंड द एक्चुअल लेंथ. फिर से वही चीज, आर एफ 2:1 दिया मीन्स आर एफ 2 दिया है. आर एफ होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ 2 सेंटीमीटर, है ना. सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10 सेंटीमीटर. आर एफ इज इक्वल्स टू ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ. नेक्स्ट, द एक्चुअल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड द आर एफ. क्या हो जाएगा बेटा? ड्राइंग 30 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, आंसर इज 30. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. और आर एफ की कोई यूनिट नहीं होती है, इट्स अ यूनिटलेस. ओके, then move to next question. The representative factor is 0.02. The actual length is 50 centimeter. Find the length of the drawing. तो आर एफ दिया हुआ है हमको 0.2. देन एक्चुअल लेंथ दी हुई है, ड्राइंग लेंथ निकालना है बेटा. तो फिर से वही चीज, आर एफ इजिकल्स टू ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ. तो क्या हो जाएगा आंसर? 10 mm. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. देन मूव टू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of a length of an actual object to the length of drawing is given as 5. Find the scale and RF. अब इसमें स्केल भी निकालना है और RF भी निकालना है. RF ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ. तो क्या दिया? रेशियो ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट लेंथ टू द ड्राइंग लेंथ. इसका रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1:5. तो 1:5 तो हो गया हमारा RF. ठीक है, फाइंड दी स्केल. अब बताइए क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? 1:5 मतलब 1/5. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या था? 1:5 या 1/5. द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज 2. द ड्राइंग लेंथ इज 100 mm. फाइंड द एक्चुअल लेंथ. आई थिंक अभी आपको
बन जाना चाहिए। RF2 दिया हुआ है, ड्राइंग लेंथ पता है, एक्चुअल लेंथ तो निकालना है। ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 50 mm। ओके, तो क्या करेक्ट आंसर हुआ? 50 mm। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ अ लाइन हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर ऑन द ड्राइंग शीट रिप्रेजेंटिंग एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 6 मीटर? तो क्या RF के निकालना है हमको? ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ दी है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके। आई थिंक ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1:25। ओके, नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन सबसे बन जाने चाहिए, है ना। Which of the following representative factor will have an enlarging scale? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप के स्केल होते हैं, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल एंड फुल साइज स्केल। रिड्यूसिंग स्केल की RF की वैल्यू लेस देन 1 होती है, एनलार्जिंग स्केल की मोर देन 1 होती है। तो इसमें जिसका भी आंसर मोर देन 1 आएगा वो होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1:0.5। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग इज 15 mm एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर? तो ड्राइंग लेंथ 15 mm अपॉन 3 mm, 3 मीटर, इसको सॉल्व करेंगे मीटर को mm में कन्वर्ट करके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1:200 इज द आंसर। The maximum length is 50 meter. The length of the scale is 10 centimeter. What is the RF? Find its RF. तो RF की वैल्यू फिर से वही, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ गिवन है और लेंथ ऑफ द स्केल गिवन है, तो आपको ये बनेगा लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ स्केल निकाल, इसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ अ लाइन हैज टू बी मेड इफ द गिवन to prepare a plane scale of 7 yard? How many division of a line? तो यार्ड से क्या आता है बेटा? 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। और 1 यार्ड के पार्ट करेंगे तभी तो एक यार्ड आएगा, तो 7 के 7 पार्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 7। ओके, then what is the length of the scale? Representative factor is 3:40 and the maximum length to be represent in a scale is 100 centimeter। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? RF गिवन है, मैक्सिमम लेंथ गिवन है। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 7.5 सेंटीमीटर। इन प्रिपेयरिंग अ प्लेन स्केल ऑफ फीट एंड यार्ड, द फर्स्ट डिवीजन इज टू बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी सब डिवीजन? तो बेटा 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। तो नंबर ऑफ डिवीजन, सब डिवीजन कितने होंगे? 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, then move to next question। in preparing a plane scale of feet and inch, how many subdivision? तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं बेटा? 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो नंबर ऑफ सबडिविजन कितने हो जाएंगे? 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 यार्ड में 3 फीट, 1 फीट में 12 इंच। ओके, then move to next question। in preparing a plane scale of miles and furlong, how many subdivisions, how many divisions to be the first part is to be made? बताइए बेटा, माइल्स में कितने होते हैं? 8 फरलॉन्ग होते हैं। 1 माइल्स में 8 फरलॉन्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अ प्लेन स्केल इज मेड विच शो 6 मीटर ऑफ मैक्सिमम लेंथ एंड सब डिविजन इन डेसीमीटर विद RF ऑफ 1/60। हाउ मेनी लेंथ डज द स्केल शो? 4 मीटर एंड 5 डेसीमीटर। हाउ मेनी लेंथ शोज बेटा? तो ऑप्शन है 4 मीटर 5 डेसीमीटर, 4.5 मीटर, 0.75 डेसीमीटर, 0.75 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4.5 मीटर। 4 मीटर 5 डेसीमीटर का मतलब ही होता है 4.5 मीटर। ओके, देन द डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन डैश यूनिट। कितने यूनिट्स तक के लिए होता है बेटा डायगोनल स्केल? 3 यूनिट्स तक के लिए। प्लेन स्केल 2 यूनिट्स के लिए, याद रहेगा। डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस अप टू 3 यूनिट्स। नेक्स्ट 35 question। In a diagonal scale is to be made with a meter, decimeter, centimeter, then how many divisions is to be made vertically? 10। okay, okay, 1 meter में 10 decimeter, 1 decimeter में 10 centimeter। Next question, if a diagonal scale is to be made with a yard, feet, inch, then how many subdivisions to be made in vertically? 1 yard में 3 feet, 1 feet में 12 inch। The 12, option number B is correct, 12 subdivisions होंगे vertical वाली लाइन पे। okay, याद रहेगा ना, 1 यार्ड मतलब 3 फीट। देन डायगोनल स्केल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इट्स ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट है ये। डायगोनल स्केल किस प्रिंसिपल वर्क करता है बेटा? हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल पे। ठीक है, डायगोनल स्केल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इट्स ऑप्शन नंबर ए ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड टू एक्यूरेटली मेजर मिनट्स डिवीजन? याद रखना, मिनट्स डिवीजन के लिए हमेशा डायगोनल स्केल लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डायगोनल स्केल।
मिनट्स के फर्दर डिवीजन के लिए हम डायगोनल्स का यूज करते हैं। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द गिवन स्केल, इस स्केल की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? तो आप सीधे लास्ट में देखिए 3 है, 0 के बाद एक ब्लॉक छोड़ के 0 1 2 3 और इस तरफ का एक 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 डेसीमीटर। ठीक है, आप ऐसे देखना, 0 के बाद एक है और 0 के बाद 3 है और पहले एक डिवीजन दिख रहा है, टोटल डिवीजन कितने हो गए 4। हाउ मेनी फ्रॉम द गिवन स्केल बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ कितनी है? अच्छे से देखिए बेटा, 3 की लाइन पे पी है और क्यू किस में है? 1 पे, और यहाँ पे कितने पे है? 10 पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 यार्ड 1 फीट 10 इंच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3 यार्ड 1 फीट 10 इंच। ओके, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन स्केल, लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना डिस्टेंस कर सकता है, तो मिनिमम आप देखिए ना बेटा, मिनिमम कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? डेसीमीटर द सेंटीमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर का डिवीजन दिख रहा है मुझे मिनिमम डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ दैट कैन टू बी मेजर्ड, कितनी लेंथ मेजर कर सकते हो? सीधे लास्ट में आइए, कितना दिया है? 11 और एक इधर का 12, ये कितना हो जाएगा? 12 डेसीमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। ये कौन सा स्केल है बेटा? प्लेन स्केल। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी 12। The section cut by a plane on a right circular cone are called conic section। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोनिक सेक्शन। सेक्शन को कट बाय अ प्लेन राइट सर्कुलर कोन आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन से हमें सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला मिलता है, तो क्या ऑप्शन दिया है? सर्कल, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सर्कल। ठीक है, याद रखना, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कोनिक सेक्शन से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, इन कोनिक द डैश इज रिवॉल्विंग टू फॉर्म टू एंटी पैरेलल कोन ज्वाइनिंग टू द अपेक्स, क्या मिलता है बेटा? फटाफट बताइए, एलिप्स, सर्कल, जनरेटर या पैराबोला? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जनरेटर। टू एंटी पैरेलल कोन ज्वाइनिंग एट द अपेक्स इज कॉल्ड जनरेटर।